बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। हम आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ने और क्या क्या सीआईआई के बैठक में, समिट में क्या क्या भाषण दिया। India cannot go forward without partnership, without working together. The poor are one component of our country. Business is another component. The middle class is a third component. We have to work with all these components. It's not good enough to say, listen, the poor are important. It's not good enough to say business is important. It's not good enough to say middle class is important or the powerful are important. This country is only going to move forward if we stitch together a coalition where we are all working together. Higher level policy will be dealt with by the MPs and MLAs. Lower level policy will be dealt with by the Pradhan. And a lot of the problems that are coming in our system today are because I am dealing with low level staff. That our ministers are doing stuff that is actually not their job. It's the job of a local representative far outside. So until we actually open this political system out, this dysfunction will exist. I don't know if that's a complicated answer, but that's actually the answer. Our political parties are not designed for Pradhans. They are designed for MPs and MLAs. That's the problem. So it is not a state center problem. It is actually a devolution of power problem. And until we actually start to build the structures that bring these guys' voices in, we are going to have this type of policy, this type of conflict. What's actually happening, if you want it at the ground level, what's actually happening is that the Pradhan is the builder. He's the guy who does the job in the village. When we fight elections, we go to the Pradhan and we say, support us. But the Pradhan doesn't actually have any power in the political party. That's the problem. And it's a problem that, let me put it bluntly, it's a problem that Pradhan is going to solve. He's not going to worry about whether there's an MP in front of him or an MLA in front of him. He's the last mile. So what we have to do, the architecture we have to build, is one which brings the Pradhan in. And that, frankly, other than the left parties and some of the Dravidian parties, none of the other parties. और राहुल गांधी के बयान पे क्या क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो आपको दिखा देते हैं। एक भ्रष्ट राज के युवराज का चलताऊ भाषण था, ये चलता फिरता भाषण। इस चलताऊ भाषण में ना तो कोई तथ्य थे, न सच्चाई थी, और न ही जो है वो देश की दिशा क्या उनके दिमाग में है, ध्यान में थी। केवल भाषण के साथ उपदेश, और उपदेश के साथ साथ किसी प्रवचन के रूप में ये भाषण दिया गया। देश को आज जो सबसे बड़ी समस्या है, लोगों को तकलीफ देने वाली महंगाई और भ्रष्टाचार, और मजदूर और किसान जिस कदर परेशान है, उनके बारे में कोई लफ्ज नहीं था। और इसलिए इस भाषण का कोई परिणाम तो नहीं होगा। बात साफ है कि मोदी का डर उनके मन में साफ झलक रहा था। तो ये एक कंफ्यूज्ड यूथ लीडर presented his confused ideology which nobody could understand. देखिए, राहुल जी का उपाध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के फोरम पे से अलग ये पहला भाषण था, और ये उम्मीद थी कि वो कमियों को स्वीकारेंगे, महंगाई पे बोलेंगे, भ्रष्टाचार पे बोलेंगे, सरकार के अंदर जो कमियां हैं उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन राहुल जी ग्राम प्रधान को ताकत देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री है उसको ताकत देने के लिए दो शब्द भी उन्होंने नहीं कहे हैं। आज जो भ्रम की स्थिति बनी है सत्ता के दो केंद्र का, उस पर भी वो खामोश रहे हैं। वो भविष्य का सपना तो दिखा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में
पिछले 60 साल से उनकी पार्टी की हुकूमत रही, 60 साल में 50 साल के करीब हुकूमत रही है, पिछले 9 साल से उनकी पार्टी सरकार में है, फिर देश का क्यों बुरा हाल है, महंगाई क्यों है, देश लुट क्यों गया है, भ्रष्टाचार क्यों हुआ है, इस पर उन्होंने 2 शब्द भी नहीं बोला। आज उन्होंने देश को निराश किया है। बिल्कुल नाबालिग की तरह बात करते हैं राहुल गांधी। इस तरह से बात कर रहे हैं कि बाकी पार्टियां सत्ता के लिए राजनीति कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी भगवत दर्शन के लिए राजनीति कर रही है। ये कोई अर्थ नहीं है। उनको खुद पता नहीं याद है कि नहीं कि उनकी दादी का इलेक्शन सेट असाइड कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तो कुर्सी छोड़ने के बदौलत देश में उन्होंने इमरजेंसी लाद दिया था। तो सबसे ज्यादा दिनों तक कांग्रेस पार्टी ही इस देश में सत्ता में रही है और सत्ता का किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने दुरुपयोग किया है यह भी सब लोगों के सामने है। इसलिए सबसे पहले दूसरों को उपदेश देने के पहले वो अपनी पार्टी को ठीक करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए राहुल गांधी जो बात करते हैं उसको कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। दूसरों को लेक्चर दे रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जो है लेक्चर का अधिकारी, उनके लेक्चर का अधिकारी उनकी पार्टी ही है और पार्टी के भीतर ही वो इस तरह का लेक्चर दें। दूसरों को लेक्चर देने का कम से कम उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हीं के खानदान में जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, उनके पिताजी हो, सबसे ज्यादा देश पर शासन उन्हीं लोगों ने किया है। तो देश की सदगति है या दुर्गति है उसकी जवाबदेही जो है उन्हीं की पार्टी पर और उन्हीं के परिवार पर है। कांग्रेस, उसके नेता चाहे मंत्री हो, चाहे संगठन से जुड़े हों या राहुल जी खुद हों, इस देश की वास्तविकता को क्यों नहीं समझ पा रहे, इस देश के मर्म पे क्यों नहीं हाथ रखते। हमें बड़ा दुर्भाग्य होता है कि दिल्ली में एयर कंडीशन में बैठ के पूंजीपतियों के साथ जब देश के गरीबों की बात करी जाती तो लगता कि जैसे देश की गरीबों की खिल्ली उड़ाई जा रही है। अरे पसीना बहा के गरीबों के बीच बैठ के उनकी गरीबी देखकर, उनके साथ खाना खाकर, सुख दुख बांट के अगर बात करी जाए तो शायद व्यवस्था परिवर्तन की बात हो सके, देश की हालात में भी सुधर सके, महंगाई भी रुक सके। लेकिन दुर्भाग्य सरकार में भी वित्त मंत्री सिर्फ पूंजीपतियों से बात करके बजट बनाते हैं। और राहुल जी ने भी देश के पूंजीपतियों के साथ बैठकर देश की गरीबी मिटाने की बात की, देश के गरीबों की बात की, व्यवस्था परिवर्तन की बात करी। ये संभव नहीं। कांग्रेस को अपना नजरिया बदलना पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी और जमीन पे आने की जरूरत है। एक लोग जो चुने प्रतिनिधि हैं देश नहीं चला सकते, तो एक आदमी से देश चलेगा? एक आदमी कैसा देश चलाएगा? इसलिए ये जनतंत्र माने वोट का राज, जब हम मान लिया कि चुने हुए लोग प्रतिनिधि जनतंत्र है तो वोट के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, तो उसी में पंचायती राज को सशक्त करना पड़ेगा और ये जो चुने प्रतिनिधि है इसकी को महत्व देना है। इसके बिना कैसे देश चलेगा? उन्होंने जिस तरह से बोला है कि जमीन से जुड़ी पार्टी वही देश में राज कर। आज जमीन से जुड़ी पार्टी मजबूत हो, लेकिन कितनी जमीन से जुड़ी कौन पार्टी है से लोग नहीं देख रहा है। अब वो सब स्टेटमेंट पर हम लोग सीख रहा है, राजनीति समझ रहा है। मजाया भी नहीं है तो सीख लेगा, जान जाएगा, हो जाएगा। भाई अगर हमारी नीतियों की तारीफ हो रही है तो हम यही कहते हैं कि लागू करिए। हिंदुस्तान के अंदर अगर आर्थिक विकास की जरूरत है तो लोगों के हाथों में खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। वो छूट ना दो, वो पैसा वसूलो जो आपकी लाजमी मतलब टैक्स का पैसा है, और वो पैसा जो वसूलेंगे उसको आप इस्तेमाल करिए निवेश में। बनाइए सड़कें जो चाहिए हमें, बनाइए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, लाखों की तादाद में नौकरियां की सृष्टि होगी और उनके हाथ में जब पैसा आएगा लोगों के हाथ में, उससे जो मांग जो बढ़ेगी देश में, उसके आधार पर आर्थिक विकास होगा। जिस तरह से कल नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट आई है और सीएजी की रिपोर्ट ने दिखाया है कि जिस तरह से उन्होंने कॉर्पोरेट हाउसेज को लाभ पहुंचाया है, तो ये साफ है कि नरेंद्र मोदी का आज जो इकोनॉमिक मॉडल देश के सामने बहुत पेश कर रहे थे वो प्रो कैपिटलिस्ट है और जो लाभ पहुंचाने वाला है औद्योगिक घरानों को। और राहुल गांधी ने जो आज एक आर्थिक नीतियों पे जो एक स्वरूप दिया है वो प्रो पुअर है। जैसे कि मनरेगा हो, उसको उन्होंने देश के सभी जिलों में लागू कराया प्रधानमंत्री से मिल करके कि जो गांव के गरीब नौजवान नौयुवतियों को रोजगार मिल सके, या कैश सब्सिडी ट्रांसफर की बात हो। क्योंकि आज जो राहुल ने कहा है उसमें साफ है कि जहां हमें आर्थिक प्रबंधन की जरूरत है वहां पे कहीं न कहीं
सामाजिक सुरक्षा का भी समन्वय करना होगा। इंक्लूसिवनेस की बात की थी कि ग्रास रूट्स पॉलिटिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए, सब लोग को ऐसा लगे कि उनके विचार पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, पॉलिसी डिसीजन में आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा और लोग को लगेगा कि उनके लिए ये देश चल रहा है। तो कॉर्पोरेट को जो एक नसीहत दी गई है कि जो एक मिसिंग लिंक है लोगों के बीच में और सीधा कॉर्पोरेट से, उसको फिल करने के लिए कॉर्पोरेट नहीं, उन्होंने कहा था कि सभी के विचार होना चाहिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड के। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, देखी कि जितने भी राजनेता है, राजनीतिक दलों के नेता हैं, लगातार राहुल गांधी के बयान पे जो प्रतिक्रियाएं हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, लेकिन इससे पहले हम इस बहस को आगे बढ़ाएं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।